Good morning, students. Today we'll discuss about chapter 10 microbes in human welfare. In your quarterly syllabus, this chapter is coming. So, in this chapter, we'll discuss about the microbes in different fields. Actually, we already came to know about that microbes. They are harmful mostly, you know. But some microbes are very beneficial for our, we can say, in case of our world, or they are actually we are getting benefit from them. So that type of microbes actually we will be discussing here specially. So all of you know microbes are actually prevailing everywhere. They can in the very hot condition also they can prevail, very cold condition also they can prevail, in snow also they can prevail, otherwise in a thermal vents also they can prevail there, and everywhere they can, and they are very microscopic in nature, so we cannot see them in our naked eyes but they are very useful also. Some of them are very useful to us, so that we'll discuss today. So you can see here it is given to us that the microbes are actually present everywhere. They are present even at the where no other life form would sustain actually or possibly exist, and they can exist in high temperature like 100 degrees Celsius, deep in the soil, and highly acidic environment. What type of microbes we are going to discuss in this chapter? Protozoa, bacteria, fungi, microscopic plant virus, viroids, and bacteria. So these are the category we are discussing here. And prions. Prions means the proteinaceous infectious agent. It is written here. Prions means proteinaceous infectious agents. And so they are also, we are considering about these microbes who are actually some of the microbes, they are actually beneficial to us, so that only we will discuss here. So now microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form the colonies that can be seen with the naked eye. Microbes simply क्या होता है, individually that is very microscopic in nature, but when we are culturing them and they are forming the colonies, and in that condition they can be seen with our naked eyes. Such cultures are useful in studies on microorganisms. So you can see here, this is actually, we can say, the colonies of bacteria. This is colonies of fungi, and here it is coming here pictures are there. That is rod shaped bacteria is here, spherical shaped bacteria are here, rod shaped, spherical shaped. This is actually rod shaped bacteria, and magnified image actually this one. This one is bacteriophage, and their capsid and capsomere all are seen here. Next one, this is actually fungal colony, this is bacterial colony. So in that bacterial colony, as we are seeing in this picture also, so we can see the bacterial colony by our naked eyes. Okay, but in individual to bacteria hai usko, that is very microscopic in nature, so we cannot see them in our naked eyes. Okay, so now they also cause disease in animals and plants, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contributions of microbes of human welfare are discussed in this chapter. Okay. So microbes in household products. Here we are actually discussing, we are actually distributing this portion in some categories. Just like card making, just like toddy making, just like cheese making. In that way, I gave in the notes in point wise. You can see that one. So what are given in the book, that only I discuss now. So what is that? Common example. What is a common example? Household product may, what are the bacteria or what are the microbes we are using there. So it is a production of curd from milk. है ना. माइक्रोऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है ना? लैक्टोबैसिलस बाल्जेरिकस, लैक्टोबैसिलस कोजीआई, है ना. These are the example of which one that I gave the name fully in the notes. You can see that one. So lactobacillus kochii or lactobacillus bulgaricus, these are the microorganisms which can convert the milk to curd by creating some acids. Okay. So these are commonly actually known as lactic acid bacteria or LAB. Okay, lactic acid bacteria. L for lactic, A for acid, and B for bacteria.
grow in milk and convert it to curd. During the growth, the lab produce acids that coagulate and partially digest the milk protein. जैसे आपने देखो कि नींबू निचोड़ देते हैं तो क्या होता है, छना बन जाते हैं. मीन्स that is called coagulation, and that coagulation is done by which one? This lactobacillus, and so that the milk is converted into curd. तो ये क्या होता है ना, जब भी जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ड, जैसे आप देखो जब दही जमाते हैं थोड़ा सा पोर्शन स्टार्टर के हिसाब से यूज़ करते हैं, मतलब वही जो स्टार्टर के हिसाब से हम यूज़ करते हैं दैट इज एक्चुअली कंटेनिंग दिस लैब बैक्टीरिया, मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना. इरा स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर. आपने देखे होंगे कि थोड़ा सा गुनगुना जो मिल्क होता है उसमें हम दही जमाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर की जरूरत होता है इस बैक्टीरिया को ग्रो अप करने के लिए और उसका अच्छा सा फ्लरिश ग्रोथ देने के लिए. तो दैट्स वाई वी आर कीपिंग दैट कंटेनर इन अ वेरी temperate or we can say in the temperature, some little bit temperature or warm condition. Okay, suitable temperature, multiply this, thus converting the milk to curd, which also improves the nutritional quality. कैसे इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी? बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. किसके अंदर? इसलिए कार्ड को बहुत ही न्यूट्रिशनल हम क्यों बोलते हैं, एक तो क्या होता है हाफली डाइजेस्ट हो ही जाता है, जब भी कोआगुलेट हो जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है पार्शियली डाइजेस्ट, तो आपको डाइजेस्ट करने में भी इजी रहेगा और साथ ही साथ इसमें क्या रहता है ना, विटामिन B12 रहता है. सो इट ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 in our stomach too. And the lab means lactic acid bacteria play a very beneficial role in checking disease causing microbes. So आपके पास ये कार मेकिंग की प्रोसेस भी और साथ ही साथ हु आर रिस्पॉन्सिबल. एक्चुअली आपको यहाँ पे लर्न करनी है बहुत सारी साइंटिफिक नेम जिसका जो सोर्स ऑफ हम उसको बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स की सोर्स कौन से, कहाँ से ये एंटीबायोटिक बोलो या कहाँ से बोलो ये हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट हमें आ रहे हैं फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग, सो दैट माइक्रोब्स की नेम जो है द नेम ऑफ दैट माइक्रोब्स यू हैव टू रिमेंबर. कुछ बहुत सारी है जो आपको लर्न करनी है इस चैप्टर में. अच्छा, द डफ जो हम क्या बनाते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं, इडली डोसा ये सब बनाते हैं, उसमें खमीर जिसको बोलते हैं ना खमीर उगाते हैं. तो इसमें क्या होता है ना, खमीर का मतलब क्या है कि वो जैसे इसमें क्या था फर्मेंटेशन हो जाता है. तो फर्मेंटेशन होने के लिए क्या चाहिए ना, उसके लिए ईस्ट चाहिए. नॉर्मली आप देखे होंगे कि ईस्ट हम डालते हैं, उसको हम कौन सा ईस्ट, ईस्ट दो टाइप की होता है, एक बेकर ईस्ट होता है, एक ब्रूअर ईस्ट होते हैं. बेकर ईस्ट में क्या होता है, जितना बेकरी प्रोडक्ट जो होता है जैसे ब्रेड बोलो और जैसे ब्रेड टाइप जितना होता है, डफ बोलो, है ना, इडली डोसा ये सब जितने सारे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या डालते हैं ना, बेकर ईस्ट डालते हैं जहाँ पे बेकिंग की जरूरत होता है ना. और जहाँ पे ब्रूअर मीन्स जहाँ पे बेवरेज की प्रोडक्शन है ना, अल्कोहलिक बेवरेज की प्रोडक्शन होता है, उसमें हम क्या यूज करते हैं ना, ब्रूअर ईस्ट. हम बाद में आ जाते हैं उसको. तो ये जो पफीनेस आता है, पफ्ड अप अपीयरेंस, जैसे खमीर एकदम एकदम भर के बाहर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं पफीनेस, है ना. तो पफीनेस कैसे आता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2. ये CO2 कहाँ से आता है ना, CO2 इज द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन. तो जैसे C6H12O6, तो उसको आप फर्मेंट करोगे तो क्या होगा ना, इथाइल अल्कोहल प्लस आई कैन से हियर द कार्बन डाइऑक्साइड. सो फॉर दैट, है ना, यहाँ पे रिएक्शन अगर आपको दिखा दूँ मैं, रिएक्शन so suppose fermentation reaction if I am showing here, that is here C6H12O6 है ना. ये फर्मेंटेशन में क्या प्रोडक्शन हो जाएगा ना, 2C2H5OH प्लस है ना 2CO2 प्रोडक्शन हो जाएगा. तो अभी देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, है ना, इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल और साथ ही साथ क्या प्रोडक्शन हो रहा है, CO2. दैट मीन्स दिस पफीनेस इज कमिंग ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड प्रोडक्शन ऑफ द CO2. द प्रोडक्शन ऑफ CO2 इज देयर. ओके, नाउ वी आर कमिंग, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस बोल के रखा है. सिमिलरली द डफ व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्रेड, it is fermented using the baker's yeast. This is called Saccharomyces cerevisiae.
है ना। ये कौन सा है, बेकर्स यीस्ट। और यहाँ पे जो है फर्मेंटेशन हम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स, है ना। जैसे इसके अंदर में कौन कौन आएगा, एक टोडी है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, यहाँ पे साउदर्न इंडिया में यूज होता है। कहाँ से होता है ना, फर्मेंटेशन ऑफ कौन सा सैप ना, टोडी पाम जो होता है ना, टोडी पाम, उसी के जो सैप मीन्स जो जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट। सो सैप और कोकोनट जो वाटर होता है, इन दोनों की फर्मेंटेशन से क्या बनता है, टोडी, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ड्रिंक। अच्छा, कुछ माइक्रोब्स के आर यूज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द फिश, है ना, कुछ फर्मेंटेशन ऑफ फिश के लिए यूज होता है, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक द फूड्स। अच्छा, कुछ होता है कि चीज़ प्रोडक्शन के लिए, चीज़ 3 टाइप्स की होता है, एक तो स्विस चीज़, एक रॉकफोर्ट चीज़ और एक होता है कैमम्बर्ट, है ना। तो ये तीनों मैंने ऑलरेडी नोट्स में दे के रखा है, तो यू कैन सी दैट वन। तो जो है स्विस चीज़, दैट इज एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम है ना, प्रोपिनिबैक्टीरियम शार्मोनी, है ना, प्रोपिनिबैक्टीरियम शार्मोनी। ये है, ये कुछ नेम्स है जो आपको याद रखनी है। रॉकफोर्ट चीज के लिए कौन सा है ना, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, है ना, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये सब साइंटिफिक नेम मैंने दे के रखा है। और जैसे कमम्बर्ट चीज है, पेनिसिलियम कमम्बर्टी। सो दिस आर द एग्जाम्पल एक्चुअली बाय व्हिच दे आर प्रोड्यूसिंग द, वी कैन से हियर द चीज ऑल्सो। एंड नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द, सो दिस आर द एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड। क्या क्या था, कार था, उसके बाद इडली डोसा वाला जो प्रोडक्ट है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, बैक्टीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज कमिंग फॉर द, नेक्स्ट इज कमिंग ब्रेड प्रोडक्शन, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, मीन्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट के हिसाब से यूज होता है। नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द टोडी, दैट इज अ ड्रिंक, दैट इज ऑल्सो फर्मेंटेड प्रोडक्ट, है ना। फर्मेंटेशन ऑफ विच वन, सैप फ्रॉम द टोडी पाम एंड द कोकोनट बटर। एंड माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स यूज होता है फर्मेंटेशन ऑफ फिश, सोयाबीन एंड द बैम्बू शूट्स के लिए, जो फूड के हिसाब से यूज होता है। चीज़ों के 3 चीज़ होता है, जैसे एक तो है आपके स्विस चीज़ जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मोनी से होता है, एक रॉकफोर्ट चीज़ दैट इज पेनिसिलियम दैट इज रॉकफोर्टी, एंड एक तो कमम्बर्ट चीज़। ओके, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ चीजेस आर देयर। अच्छा, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसमें इंडस्ट्री में माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसिस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कौन कौन से, बेवरेज एंड एंटीबायोटिक्स, है ना। बेवरेज एंड एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन रिक्वायर्स ग्रोइंग द माइक्रोब्स इन लार्जली वेसल्स, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटर्स। जब माइक्रोब्स अब लार्ज वेसल्स में इसकी फर्मेंटेशन किया जाता है, स्पेशली फॉर द बेवरेजेस प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। आप फर्मेंटर्स की फिगर से दे सकते हो, ये है जो लार्ज कंटेनर जिसके अंदर ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट चलता रहता है। तो इसमें से क्या है, माइक्रोब्स स्पेशली द ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर टाइम इमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, लाइक कौन कौन सा है, वाइन, बियर, व्हिस्की एंड ब्रांडी और रम, है ना। ये कौन सा है, कौन सा ईस्ट है ना, ब्रूअर ईस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूअर ईस्ट, है ना। तो ये है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड द ब्रूअर्स ईस्ट। नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अच्छा, इसके बाद क्या है ना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, विद और विदाउट डिस्टिलेशन, मीन्स विद डिस्टिलेशन हो रहे या विदाउट डिस्टिलेशन हो रहे, और कौन सा मटेरियल यूज हो रहे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। जैसे वाइन और बियर, दे आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, व्हेयरएज व्हिस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। तो कुछ डिस्टिल प्रोडक्ट होता है, कुछ डिस्टिलेशन नहीं होता है, कुछ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसके डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, बट एक्चुअली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, एंड इसको हम लोग कौन से ईस्ट बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। So antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century. अच्छा, एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट आपको बताया, और बायोटिक्स, बायो का मतलब है लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ जब काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला है एग्जाम्पल, देखो, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब्स। मतलब एक माइक्रोब से प्रोडक्शन हो रहे हैं और दूसरे माइक्रोब्स, एक्चुअली जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं हमारे बॉडी में, दोज व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, दैट कैन बी किल्ड बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट ऑफ सम माइक्रोब्स, एंड दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स।
ओके जैसे इसका हिस्ट्री है, हिस्ट्री कौन सा है ना, फर्स्ट डिस्कवर जो होता है ना पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये डिस्कवर किए थे पेनिसिलिन। तो जब वर्किंग ऑन द स्टैफाइलोकोकस, ये एक बैक्टीरिया होता है ना, स्टैफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, वंस ऑब्जर्व अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किए थे ना, उनके जो कल्चर प्लेट्स था, कल्चर प्लेट्स में एक अनवॉश्ड मतलब जिसको अच्छे से क्लीन नहीं किया, उस कल्चर प्लेट में एक मोल्ड ग्रो की, है ना। तो उसी मोल्ड के आसपास कोई स्टैफाइलोकोकाई ग्रो नहीं हो पा रहा था, है ना। तो स्टैफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया था और उनके काम इसके ऊपर था। बट जब देखा एक मोल्ड के चारों तरफ कोई स्टैफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहे, कुड नॉट ग्रो, ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन। ठीक है, तभी जाके पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था। एंड मोल्ड की नाम क्या रखा था, जो फंगस की नाम क्या रखा था, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो आफ्टर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरे एंड चेन एंड फ्लेमिंग, ये तीनों की कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। द एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स wounded in World War II. फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वर अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन। ऐसे बहुत सारा है जो है एंटीबायोटिक्स यूज होता है, जैसे सोर्स हम बता देते हैं, मैंने ऑलरेडी नोट्स में दे के रखा है, तो आप भी एक बार देख लो इधर से। एंटीबायोटिक क्या है, पॉलीमिक्सिन बी, नेम क्या है, पॉलीमिक्सिन बी। कहाँ से हो रहे, माइक्रोबियल सोर्स कौन है, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस पॉलीमिक्सा, है ना। तो इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, डिटेरियोरेट्स द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो जिसको अटैक कर रहे, मतलब जो माइक्रोब्स को ये अटैक कर रहे उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिटेरिएशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिट्रेशन क्या है, बैसिलस सबटिलिस, ये क्या करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर देते, मतलब उसको सेल वॉल सिंथेसिस को होने नहीं देते, तो डेफिनेटली वो माइक्रोब जी नहीं पाएगा। तो यही है इसका मोड ऑफ एक्शन, किसी माइक्रोब्स का सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, किसी का सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देते हैं, किसी में प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज में कौन है, क्लोरामफेनिकल एंटीबायोटिक इसकी नाम है, और इसकी सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। एंड इसकी फंक्शन क्या है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म में मतलब माइक्रोब्स में अगर प्रोटीन सिंथेसिस ना हो पाए तो डेफिनेटली इट विल नॉट सर्वाइव, सो दैट इज द मोड ऑफ एक्शन, है ना। एरिथ्रोमाइसिन वही है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियासिस इंटरफियर्स विद द प्रोटीन सिंथेसिस। अभी कुछ फंगी भी सोर्स के हिसाब से काम करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, फंगस कौन है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये क्या करते हैं ना, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देते हैं। और सेफालोस्पोरिन, सेफालोस्पोरियम, एक्रीमोनियम, ये इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ओके।